a non-uniform circular motion, students. यहाँ पे हम will be trying to find out the formula for students. First of all, velocity at any instantaneous position, students. हम वो find out करेंगे. फिर इसके बाद में we'll try to find out tension at any instantaneous position, students. Okay. फिर हम find out करेंगे tension at lowest point, tension at diametrically opposite points, tension at the topmost position, students. और फिर उसके बाद में we'll go for total mechanical energy for a body performing vertical circular motion to remain constant, students. Hope this part is clear to all of you. अभी यहाँ पे हम vertical circular motion में लेते हैं students. तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये non-uniform circular motion है students. यानी effect of gravity is playing a role. Means now if I want to draw a diagram onto this, students, so I'll try to go for a vertical motion. It's circular. But students, direction of velocity goes on changing at each instant. ये तुम्हारा horizontal, students, x axis में ले रहा हूँ. ये vertical मैंने y axis ले लिया students. This is the x axis. X complement y complement, students. ये तुम्हारा center of circular path. I'm taking it. Think as if the body is performing circular motion, students, in a vertical plane, xy plane, जो vertical है students. Okay. ये जो तुम्हारा position है वो lowest position है. L stands for lowest position, students. D जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो diametrically opposite points, students. ये दोनों को मैं D ही बता रहा हूँ मैं, diametrically opposite points. ये है तुम्हारा topmost position या highest position, तुम बता सकते हो इसको. अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है स्टूडेंट्स, तो व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी? तो बोलेगा सर लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ओके, एंड इट्स वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, है ना. ये तुम्हारा पार्टिकल यहाँ पे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल का तुम क्या ले लो. सपोज अगर मैंने कोई स्ट्रिंग लिया स्टूडेंट्स, आई हैव टेकन अ स्ट्रिंग और मैंने धागे से बांधा हुआ है और नीचे स्टोन है स्टूडेंट्स. द स्टोन इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. Students, the stone is performing circular motion and in which the speed goes on changing, students. Are you getting it? So over here we have the speed at the lowest position. यहाँ पे मैंने क्या किया students? Speed को क्या किया मैंने? Lowest position. तो ये मैं लिखूंगा velocity at the lowest position, students. जब भी body यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे उसकी tangential velocity होगी students. तो ये होगा velocity at the diameter. Agreed. यहाँ पे अगर body यहाँ पे आए तो direction of velocity नीचे की तरफ होगा, tangential. Topmost position होगा तो ये होगा direction of velocity. Agreed. We'll be first getting the answer for students velocity at any instantaneous position, students. So suppose अगर कोई particle यहाँ पे students, अगर मैंने बोला कि particle यहाँ पे है, तो ये क्या बन गया सर? ये होगा तुम्हारा position vector. ध्यान से सुनना students. और the length of the string. Suppose अगर तुमने stone को किया है और vertical circular motion है, तो ये क्या बन गया तुम्हारा length of string. Agreed. Now if I want to get velocity at this instantaneous position, तो तुम्हें मुझे चाहिए v. Students, velocity at a particular instantaneous position का formula. How is v? Students, how is v and r? Students, center ये है position vector. So how is v and r? Students, v and r are all the time mutually perpendicular to each other. Students, ये हम लोगों ने किया है कि नहीं किया? हाँ students, v and r mutually perpendicular. Students, are you all there? No, sir. नहीं किया ये हम लोगों ने. आर्या, आर्या, No. क्या रिया? हम लोगों ने किया है कि नहीं किया है? नहीं सर. नहीं किया. Others also feel the same thing. V and R हम नीचे जो perpendicular नहीं किया हम लोगों ने. अच्छा मुझे ये बताओ. किया है सर. किया है सर. नहीं अभी तो मुझे बताना पड़ेगा. क्या मैंने डेरिवेशन किया? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर आर का डेरिवेशन किया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्टूडेंट्स. ये फॉर्मूला डिराइव किया है. ये भी नहीं किया. हाँ स्टूडेंट्स, किया है सर. किया है कि जबरदस्ती हाँ मत बोलो. रिया, किया है या नहीं किया है?
डोंट जस्ट से फोर्सफुली यस, नहीं किया तो नहीं Yes, किया है। sir. ओके और ये हम लोग ने कैलकुलस मेथड से किया था। अगर तुम लोगों को ध्यान में हो तो स्टूडेंट्स, मैंने रेडियस वेक्टर बोला था, रेडियस वेक्टर को मैंने रिजॉल्व किया था हॉरिजॉन्टल आर कॉस थीटा, वर्टिकल आर साइन थीटा। ध्यान से सुनना, फिर मैंने आर को डिफरेंशिएट किया था, डी आर बाई डी टी होके वी मिला था, और पूरा ये इक्वेशन फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया था, मुझे एक्सेलरेशन मिला था। बट स्टूडेंट्स अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो वहां पे इंटरमीडिएट शेप में मुझे आर मिला था और वी मिला था। स्टूडेंट्स मैंने वी और आर दोनों लिया था उस टाइम पे, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट किया था। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स मैंने बोला कि ये वेलोसिटी है। स्टूडेंट्स दिस इज कॉल्ड एज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एंड दिस इज अ पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर है। स्टूडेंट्स हाउ इज वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है ना हमेशा। अगर पार्टिकल यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, क्यों इतना सोच रहे हो? ये पोजीशन वेक्टर हुआ, पोजीशन वेक्टर दिस इज ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और ये मैंने बता दिया तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा ना, और मैं प्रूव कर चुका हूँ वो। Yes, sir. Students, please don't forget these things, huh? Okay, students. So I was speaking about हम velocity find out कर रहे हैं for a body performing vertical circular motion. तो ये सोचो कि मैंने धागे से ऑब्जेक्ट को बांधा हुआ है, और प्लीज सोचते रहो यहाँ पे, डोंट जस्ट सिट मम। कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो स्टॉप करो मुझे और पूछो, ब्लाइंडली आगे एक्सेप्ट मत करो। आई एम वार्निंग ऑल दीज थिंग्स स्टूडेंट्स। नहीं समझ में आता तो भाई नहीं समझ में आता है, करे क्या? तो पूछो ना, किसने मना किया है? लेकिन अभी मैं जब एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करूँ उस टाइम पे मैं पूछूंगा स्टूडेंट्स हैव यू अंडरस्टूड, उस टाइम पे पूछो ना। सो एंड क्लियर इट आउट इन दैट केस, या एट द मोस्ट नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करो, उसको खींचो मत। डोंट ट्राई टू टेक इट आफ्टर 3 or 4 लेक्चर्स, 5 लेक्चर्स, और जब एग्जाम्स होगी उस टाइम पे तुम निकालोगे कि यार मुझे ये तो पता नहीं था। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है स्टूडेंट्स, डू टेक केयर ना। अभी हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने स्टोन दिया है, धागे से बांधा हुआ है, और उसको मैं वर्टिकल मोशन में मूव कर रहा हूँ। अभी ये सोचो कि पार्टिकल बॉब यहाँ पे था या बॉडी यहाँ पे था एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस पोजीशन। अभी मैंने इसको यहाँ पे ले लिया पोजीशन, एग्रीड। और ये तुम्हारा सर्कुलर पाथ है, ये तुम्हारा सर्कल, मैंने क्या किया यही सेक्शन लिया स्टूडेंट्स। ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर होगा, जो कि कैन आई से लेंथ ऑफ द रिवॉल्विंग, द बॉडी सेट टू रिवॉल्व इन दिस वे स्टूडेंट्स, है ना। ये सेंटर ओ है। कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यही डायग्राम को मैंने लिया है। फिर मैं क्या करता हूँ सर, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये एंगल थीटा है। सोचो कि ये जो स्टोन था ना स्टूडेंट्स, स्टोन था ना, उसको मैंने डिस्प्लेस किया एट एन एंगल थीटा एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकंड्स यहाँ पे था, एट टाइम t1 इक्वल टू p1। उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या है? व्हाट एग्जैक्टली वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इज v। मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। इसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे? तो तुम बोले सर स्टोन यहाँ से, यानी स्टोन लोएस्ट पोजीशन पे था, यहाँ से यहाँ पे क्या है? एग्री। तो मुझे बताओ ये जो स्टोन लोएस्ट पोजीशन से यहाँ पे पहुंचा है, उसका मतलब कैन आई से इट हैज गेन्ड सम पोजीशन। हाइट गेन हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ स्टूडेंट्स, हाँ स्टूडेंट्स, ये देखो Yes, sir. बॉब यहाँ पे था, उसको हाइट गेन हुआ है। अगर ये हाइट है स्टूडेंट्स, ये पूरा सेंटर है, ये लेंथ है, तो कैन आई से दिस बिकम्स L minus h and this is h. Is this much clear to all of you all? Is the diagram clear to all of you all students? Yes, sir. Yes, sir. L, this is L, this much is h, so this is L minus h. Students, now if in case if you look over here in this right angle triangle, students हम क्या कर रहे हैं? What are we trying to do? We are trying to find out velocity at point P. यहाँ की velocity मैं निकाल रहा हूँ स्टूडेंट्स। अभी अगर सपोज मैं बॉडी यहाँ पे स्टूडेंट, तो what exactly? पहले ये right angle triangle में स्टूडेंट्स कैन आई से what is cos theta? हाँ स्टूडेंट्स को बता सकते हैं? तो मुझे सर cos theta is adjacent upon hypotenuse. Agreed? तो ये क्या हो जाएगा? L minus h upon L. तो we're gonna say cos theta is equal to 1 minus h by L. So we're gonna say h by L is equal to 1 minus cos theta. Therefore h is equal to L in bracket 1 minus cos theta. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाइट का फॉर्मूला मिला स्टूडेंट्स? एग्रीड? Yes, sir. Everyone has got it students, the formula for height for a particle performing Yes, sir. vertical. अभी मुझे क्या चाहिए? मुझे वेलोसिटी यहाँ पे चाहिए, तो कैसे निकालोगे?
तुरंत बोल के सर 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 ऐसा करते हैं ना, आपने बोला बॉडी यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, लोएस्ट पोजीशन से यहाँ पे जा रहा है, तो सर क्यों ना हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम ले सकते हैं, हाँ या ना? So the total mechanical energy for a body revolving in a vertical plane remains constant. सीधा हिसाब है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगा, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी तो कम होगी ना। जैसे वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे चला गया तो उस टाइम पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी होगी मिनिमम, लेकिन जीरो नहीं होगी स्टूडेंट्स। जीरो हो जाएगी तो बॉडी तो नीचे गिर जाएगा भाई, समझ में आ रहा है? फिर जैसे नीचे आओगे तो व्हाट हैपेंस, वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग, वापस यहाँ पे मैक्सिमम होगा। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पे यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टूडेंट्स, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टूडेंट्स, total mechanical energy at the lowest position is equal to total mechanical energy at point P. What is total mechanical energy at the lowest position? Kinetic energy plus potential energy. यहाँ पे भी kinetic energy plus potential energy. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इज इट क्लियर? Yes, sir. ना मुझे बता स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब बॉडी लोएस्ट पोजीशन पे होगा तो व्हाट हैपेंस इन दिस केस? कैन आई से इट विल हैव सम वेलोसिटी व्हेन यू ट्राई टू मूव द बॉडी, कैन आई से इट विल हैव सम इनिशियल वेलोसिटी u, है ना? बॉडी यहाँ पे होगी, यहाँ से तुम यहाँ पे भेज रहे हो तो उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, तभी जाके बॉडी यहाँ पे जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा, और उसका फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल, हाफ एम यू स्क्वायर, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी हो भैया? सर ये तो ग्राउंड है स्टूडेंट्स, ये ग्राउंड है, इसको हम पकड़ते हैं ग्राउंड लेवल। अगर मैंने उसको ग्राउंड लेवल ले लिया तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? जीरो। यहाँ पे क्या होगा, जब भी बॉडी यहाँ पे आएगी तो डज इट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी? यस, हाफ एम वी स्क्वायर, मुझे ये v चाहिए, वेलोसिटी एट पॉइंट p चाहिए, प्लस डज इट हैव पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट रीचेस ओवर हियर? व्हाई नॉट, व्हाट इज द फॉर्मूला? mgh। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर? Is it clear to all of you all? Yes, sir. Yes, sir. And students, is the audio and video fine with all of you all? Now anybody can get the answer. चलो कोई बता सकता है कैसे करोगे अभी? I want to find out velocity when the object reaches at point P. Anyone? सिंपल स्टूडेंट, ये देखो ना, ये होगा हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम बीपी स्क्वायर प्लस एम जी एच की जगह पे कहना है ना एल इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ये इस तरफ आ जाएगा। तो कहना इसे हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जी एल कॉस थीटा। एग्रीड? इनटू 2 u square students is equal to half m velocity at point P. Half m will get cancelled. So students, what's the velocity at point P? Under root u square minus 2gl cos theta. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्या ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? हाँ स्टूडेंट्स, Yes, sir.
Agreed. तो ये किसका फॉर्मूला हुआ? Velocity at any instantaneous position students. These students मैंने क्या किया देखो ध्यान से देखना, मैंने ये mg यहाँ पे ले लिया, मैंने LCM2 ले लिया, तो 2 यहाँ पे आ गया, half m will get cancelled. So what's the velocity at any instantaneous position? U square minus 2gl cos theta. Agreed? Yes. Okay, Sakshi saying it yes. अभी स्टूडेंट्स मुझे चाहिए वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स, वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट. चलो वो कैसे निकालोगे? हाउ डू यू फाइंड आउट द वेलोसिटी? हाँ स्टूडेंट्स, कोई बता सकता है? Anyone? Students? अभी मुझे चाहिए वेलोसिटी एट ऑल डिफरेंट पोजीशंस, तो कैसे निकालोगे? तो बता सकता है? Yes, anyone? Dhruv, Alia, Amira, Dishant. Oh, Labdi is there. Labdi has stopped speaking. She's not uttering a single word. I know what has happened to her. Mayank, Prachi, Rakshanda, Ravikant, Riya, Shyam has entered in right now. Tejas. Yes, anybody? Yash, Vishal. हाँ स्टूडेंट्स, मुझे चाहिए वेलोसिटी. ये हाँ बोलो. The highest position will be 0, so can we take it as formula of mv square upon r for Highest point what will be 0? sir highest tension? Highest tension. No sir, I was mean to say that tension will be 0. So can we take it as the formulas of mv square upon r? Absolutely correct. Absolutely correct. Students, अभी तुम्हें किसी ने velocity पूछा ना at different position students, so how do you go about? सबसे पहले हम velocity at the topmost position बताते हैं students. Before going for that, क्या ये part clear हुआ? ये multiple choice question में use होगा students, ये ध्यान में रखना. It will be used in multiple choice question. क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ students? Yes sir. Okay. Sir, in the formula U stands for? ये जो है एक सेकंड मैं इसको वापस रिप्रेजेंट करता हूँ मैं प्रॉपर्ली. ये तुम्हें h मिला, h पता चला, h इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा स्टूडेंट्स. हाँ ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. अभी देखो नेक्स्ट स्टेप ले रहा हूँ स्टूडेंट्स. नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने हाफ m u स्क्वायर लिया है, यहाँ पे मैं LCM 2 ले लेता हूँ स्टूडेंट्स. तो देखो ये m vp स्क्वायर प्लस 2 mg l डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा. हाँ स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर हुआ? 2 and 2 will get cancelled. M also will get cancelled. Clear हुआ students? हाँ students, clear हुआ? Yes sir. So what exactly VP square? U square. ये पूरा यहाँ पे आएगा तो minus 2 चाहिए. ये तुम्हारा फॉर्मूला हुआ. So what is velocity at point P?
Is this clear, students? Students? Yes, sir. Okay. ये तुम्हारा वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, अगर तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी मालूम है तो स्टूडेंट तुम फाइंड आउट कर सकते हो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंटेनियस, यानी स्टूडेंट्स अभी ये फॉर्मूला यूज करना हमेशा। लेकिन अगर मैंने पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पोजीशन, लोएस्ट पोजीशन, डायरेक्ट वेटिंग ऑपोजिट, तो उसको कैसे निकालोगे? क्या मैं अभी इसको पूरा इरेज कर सकता हूँ? कैन आई इरेज दिस एंटायरली स्टूडेंट्स? ये पूरा इरेज कर दूं मैं स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, Yes, ये sir. प्लीज ध्यान रखना, ये एमसीक्यूज में पूछेंगे। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंटेनियस पोजीशन इज अंडर रूट u स्क्वायर minus 2gl into bracket 1 minus cos theta। स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना प्लीज। Now when I was asking about velocity at different position, so Ria had put forward this, sir, can we use the concept of centripetal force and tension? Why not? Why not? You can use those concepts to get the answer. Students, अगर मैंने पूछा what is the formula for velocity at the body, velocity of a body at the topmost position? Students, velocity of a body at the topmost position, तो यहाँ पे पहले एक एग्जाम्पल में सेटअप रहता है स्टूडेंट्स। अभी देखो एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया है, स्टूडेंट्स मैंने ये रोप लिया है, ये सेंटर है और ये ऑब्जेक्ट है, और इसको मैं व्हर्ल कर रहा हूँ वर्टिकल प्लेन। ओके, it's set to move in a vertical plane. Okay, now the object is at the topmost position. ये है टॉप पोजीशन, मुझे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी चाहिए। एग्रीड? ये कौन सा मोशन है? It's a vertical circular motion स्टूडेंट्स। ये कौन सा है? It's a vertical circular motion। ये एक एग्जांपल लिया स्टूडेंट्स, है ना, धागे से बांधा हुआ है। तो अगर मैं धागे से बांधता हूँ तो बताओ यहाँ पे फोर्सेस कौन से होंगे? तो बोले सर फोर्सेस होंगे तो यहाँ पे अगर धागे से बांधा हुआ तो सर ये जो टेंशन नीचे की तरफ होगा, बॉब का वेट भी नीचे की तरफ होगा, स्टोन का वेट भी नीचे की तरफ होगा। हाँ या ना स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, जब इस चीज को तुम मूव करते हो और टॉप मोस्ट पोजीशन पे आया तो ये दो फोर्सेस नीचे की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? टेंशन और mg। हाँ Yes, sir. Yes, अगर sir. ये दो फोर्सेस नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्या स्टोन सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा या नीचे गिर जाएगा? हाँ स्टूडेंट्स, ये स्टोन क्या सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा या नीचे गिर जाएगा? हाँ स्टूडेंट्स, तो तुम बोलोगे सर ये तो नीचे गिरना चाहिए, दो फोर्सेस लग रहे हैं ना, लेकिन वो नीचे नहीं गिरता स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि एक और एक फोर्स है जो बाहर की तरफ जाता है, और वो कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल, जो कि इट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द वेट ऑफ द बॉडी स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हम टेंशन को मिनिमम लेते हैं, तो स्टूडेंट्स एट टॉप मोस्ट पोजीशन टेंशन P इज मिनिमम। ध्यान से देखना, mg नीचे की तरफ आ रहा है, टेंशन भी नीचे की तरफ आ रहा है, फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर मैं टेंशन को मिनिमम ले लूं तो मैं इसको 0 ले सकता हूं। फोर्स सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? को बता सकता है फोर्स सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन टू सेंट्रीपिटल, एंड व्हाट्स द फॉर्मूला? mv square by r. What does r over here stands for? Radius of the circular path. Students, radius of the circular path. अब यहाँ पे देखो m and m will get cancelled. So what's the velocity at the topmost position? At the topmost position, under root rg. क्या ये फॉर्मूला क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, Yes, sir. देखो ना, दो फोर्सेस नीचे की तरफ है, एक फोर्स तो बाहर की तरफ जा रहा है और वो इससे ग्रेटर होगा। टेंशन को अगर तुम 0 ले लोगे स्टूडेंट्स, टेंशन को 0 लेगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा, और वो ग्रेटर होना चाहिए। स्टूडेंट्स हमेशा जब भी तुम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखोगे स्टूडेंट्स, ये इक्वल दिखा रहा है। जैसे मैंने टेंशन को 0 ले लिया स्टूडेंट्स, कहने से ये बढ़ जाएगा। हाँ या ना?
स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो वेलोसिटी यहाँ पे हमेशा ग्रेटर देन होता है, लेकिन स्टूडेंट्स वी कैन गो फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू, सो द वेलोसिटी ऑफ द टॉप मोस्ट पोजीशन इज ऑलवेज अंडर रूट rg। अगर मैंने ये लेंथ ऑफ रोप लिया ना तो lg आ जाएगा। क्या ये सबको क्लियर हुआ? तो मैं आगे बढ़ू। हाँ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लीज Yes, रिप्लाई, sir. रिवर्ट, आर्ग्यू, बहस करो, पूछो, नहीं समझ में आता तो रोको। अभी ये तो मैंने धागे से बांधा हुआ है इसलिए टेंशन लिया। अभी और एक एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट्स, और एक एग्जांपल लेता हूँ। चलो दूसरा एग्जांपल मैंने शायद तुम्हें जब भी फर्स्ट लेक्चर मैंने लिया था सर्कुलर मोशन में, तो मैंने बोला था लूपिंग अ लूप, है ना? ये सेंटर था और कार यहाँ पे आ गई थी स्टूडेंट्स टॉप मोस्ट पोजीशन पे। कुछ याद आ रहा है? हाँ स्टूडेंट्स, पहला लेक्चर था इसका सर्कुलर मोशन का। और ये कार ऐसे टेंजेंशियली बाहर जा रही है, ये तुम्हारा सेंटर है और ये तुम्हारा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। हाँ स्टूडेंट्स, कुछ याद आ रहा है? एग्रीड? कुछ याद आ रहा है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे कौन से फोर्सेस होंगे स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन याद है लूपिंग लूप वाला? कशिश आ गई है, कशिश आ गई है, कशिश आ गई है, कशिश आ गई है, कशिश आयु देयर, कशिश आयु देयर, कशिश कहाँ हो तुम? कशिश, योर फ्रेंड लवली इज नॉट आंसरिंग एट ऑल। वो भी नहीं है, इट सीम्स शी इज नॉट इन द लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ये मैंने कंसेप्ट किया कि नहीं किया? हाँ, लूपिंग का लूप स्टूडेंट्स, ये है रोप से मैंने ऑब्जेक्ट को, ये रोप से अनम्यूट हो रहा है, सॉरी दिस वन द रोप से ये टर्न हो रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एग्रीड? और ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, द व्हीकल इज एट द टॉप मोस्ट पोजीशन वी कंसीडर इज। तो यहाँ पे कौन से फोर्सेस होंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे कौन से फोर्सेस होंगे? तो यहाँ पे तो बोल रहे सर mg नीचे की तरफ जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी नीचे की तरफ जा रहा है, दो फोर्सेस नीचे की तरफ है स्टूडेंट्स। तो गाड़ी तो नीचे की नीचे है, लेकिन गाड़ी टेंजेंशियली बाहर जाती है स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पे एक कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीफ्यूगल। सेम इक्वेशन स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पे तुम्हारा इक्वेशन कैसा आएगा? से मेरा mg प्लस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल, बट एट टॉपमोस्ट पोजीशन, at topmost position normal reaction force is minimum and zero, तभी जाके मेरा mg will be less than force of centrifugal which I can go for less than or equal to, तो mg को मैं ले सकता हूँ equal to mv square by r। mv can I say velocity at the topmost position मिल गया मुझे under root gr। कुछ समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी सेम आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ सर, समझ रहे हैं। Okay, Yes, sir. Lovely is not well since week. Lovely, what happened, Lovely? You're not well because you're not sounding at all. You don't speak at all. Had a fight with Kashish or what? Still no reply. Okay, students. ये क्लियर हुआ? अभी हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये देखो यहाँ पे क्या था, मैंने रोप से बांधा हुआ है। यहाँ पे ये और एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, और एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। ये सोचो कि यहाँ पे एक कार कॉन्वेक्स ब्रिज के ऊपर है स्टूडेंट्स। ये ब्रिज है और ये कार ऐसे जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, और ये टॉपमोस्ट पोजीशन है, ये सेंटर है। एग्रीड? तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये पूरा तुम्हारा डिस्टेंस हो गया r। स्टूडेंट्स मुझे बताओ, जब ये कार कॉन्वेक्स ब्रिज पे है, कहाँ पे है? कॉन्वेक्स ब्रिज। तो मुझे बता सकते स्टूडेंट्स, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ओवर हियर? हाँ स्टूडेंट्स, को बता सकता है कॉन्वेक्स ब्रिज पे व्हाट आर द फोर्सेस? हाँ, mg किस तरफ एक्ट हो रहा है? नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स जा रहा है?
नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। स्टूडेंट्स कार है ना कांटेक्ट में, यानी स्टूडेंट्स कहाँ पे टेंशन यूज कर रहा हूं मैं, कहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यूज कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? कहाँ पे जब भी मैं टेंशन यूज कर रहा हूँ तो मैं लेंथ ऑफ द रोप को मैं आर ले रहा हूँ, आर के जगह पे क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एल। हाँ स्टूडेंट्स, अंडर रूट जी एल लिख सकता हूँ, क्यों नहीं, लेंथ ऑफ द रोप, आई कैन गो फॉर दैट, क्यों नहीं। अभी यहाँ पे ये कार कॉन्वेक्स ब्रिज पे, तो मुझे मेरा क्वेश्चन ये कार की मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए सो दैट द कार शुड नॉट बैंग, शुड नॉट बम्प। एक वेलोसिटी होनी जरूरी है, कितनी वेलोसिटी, यानी एक सेम एग्जांपल मैं ले सकता हूँ कि स्पीड ब्रेकर। स्टूडेंट्स ये तो अभी मेरे कॉन्वेक्स ब्रिज का मतलब पता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले ये कॉन्वेक्स ब्रिज का मतलब क्या मालूम है? देखा तुम लोगों ने? शायद अगर तुम रोड पे खड़े होते स्टूडेंट्स, कहाँ पे तुम रोड पे खड़े होते हो और दूर तुम्हें ऐसा फ्लाईओवर दिखता है, ऐसा कॉन्वेक्स ब्रिज। आई डोंट नो अबाउट इट, हाउ मेनी पीपल आर स्टेइंग एट अंधेरी। सपोज अगर तुम अंधेरी वेस्ट में स्टेशन के यहाँ पे यार थोड़ा सा आगे जाते हो तो वहां पे तुम्हें एक फ्लाईओवर दिखाई देगा जो कनेक्ट करता है ईस्ट वेस्ट की तरफ, जो भी ईस्ट वेस्ट का। गोरेगांव देखो तो गोरेगांव का फ्लाईओवर, अगर तुम रेलवे ट्रैक पे खड़े हो तो वहां पे ऐसे तुम्हें फ्लाईओवर दिखेगा, ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट करता है, तो एक कॉन्वेक्स ब्रिज हो गया। स्टूडेंट्स ये सेम एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ कि सपोज ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, तुम रिक्शा में बैठे हो, सोचो ना तुम रिक्शा में बैठो या बाइक के ऊपर बैठो या तुम अपनी गाड़ी में बैठो, और रिक्शा वाला एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर लेके जाता है। हैव यू सीन स्पीड ब्रेकर्स? है ना स्टूडेंट्स, द वर्ड इटसेल्फ गिव्स द मीनिंग ब्रेकिंग ऑफ स्पीड। तो स्पीड ब्रेकर से ऊपर जब भी गाड़ी जाती है स्टूडेंट्स, तो हैव यू सीन दैट रिक्शा वाला जब भी वो स्पीड ब्रेकर से ऊपर लेता है तो अगर वो ड्राइवर सही नहीं होगा तो क्या करता मालूम है, एक 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 उसने एक वेलोसिटी को अगर ओवरकम कर दिया और वो स्पीड ब्रेकर से ऊपर लेता है तो तुम्हारी रिक्शा पूरी बैंग होती है, तुम जंप मारते हो अंदर, तुम्हारे सर पे वो रॉड भी लगता है अगर तुम्हें ध्यान से मालूम हो तो। या तुम्हारे पापा अगर तुम्हें स्पीड ब्रेकर के यहाँ पे ब्रेक लगेगा ऐसे सडन लेके जाते हैं तो तुम पीछे उछलना शुरू कर सकते हो। कोई कोई तो अगर इफ द ट्राउजर्स आर स्लिपरी, अगर तुम स्लिपरी ट्राउजर्स पहनते हो तो तुम खिसक के नीचे भी गिर सकते हो। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यानी व्हाट इज द मिनिमम स्पीड विथ व्हिच दैट वन शुड क्रॉस द स्पीड ब्रेकर विदाउट बैंगिंग द कार ऑन द फ्लोर, तो वो हम निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स। अभी ये सोचो कि द कार इज ऑन अ कॉन्वेक्स ब्रिज और स्पीड ब्रेकर का एग्जांपल, एमजी नीचे की तरफ जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कार किस तरफ जा रही है, सो स्पीड ब्रेकर से नीचे आ रही है, तो यहाँ पे मेरा कौन सा फोर्स ग्रेटर है? mg। तो कैन आई से mg माइनस n विल बी इक्वल टू व्हाट, फोर्स ऑफ सेंट्रीपेटल, यहाँ पे आएगा फोर्स ऑफ सेंट्रीपेटल, और वही 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 रिया बोल रही थी। लेकिन एट द टॉप मोस्ट पोजीशन हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को जीरो ले लेते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली, mg विल बी लेस सर, mg विल बी ग्रेटर एंड दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, और वो गाड़ी को होल्ड करके रखेगा। स्टूडेंट्स अगर मैंने n को जीरो ले लिया, स्टूडेंट्स n को जीरो ले लिया तो कहने से ये फोर्स इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो गाड़ी इज बाउंड, द कार इज बाउंड। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बार का फोर्स ये ग्रेटर हो जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी बार का फोर्स ग्रेटर हो जाता है, तभी जाकर बॉडी होल्ड होता है। स्टूडेंट्स ये कौन सा एग्जाम्पल मालूम है? डेप्थ ऑफ वेल। हाँ स्टूडेंट्स, या डेप्थ ऑफ स्फीयर। यहाँ पे देखो कॉन्वेक्स में, तो यहाँ पे m गेट्स कैंसिल, यहाँ पे भी तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट आर जी। यानी स्टूडेंट्स ये सारे केसेस में व्हाट इज द वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पोजीशन, अंडर रूट जी आर, वेयर आर इज अ रेडियस, आर इज अ रेडियस, आर इज अ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? yes sir। Yes, sir. यानी स्टूडेंट्स सिर्फ ये एक फॉर्मूला को सिखाने के लिए देखो कितने एग्जांपल्स दिए, ये एक एग्जांपल दिया, ये दूसरा एग्जांपल दिया, ये तीसरा एग्जांपल दिया, अभी मैंने डेप्थ ऑफ स्फीयर भी बोला। स्टूडेंट्स डेप्थ ऑफ स्फीयर में होता क्या है स्टूडेंट्स, ये सोचो सोचो कि एक साइकिलिस्ट है स्टूडेंट्स, शायद तुम लोग ने कहाँ पे देखा होगा, एक साइकिलिस्ट है जो ये स्फीयर के अंदर चला गया। स्टूडेंट्स ये साइकिलिस्ट है, ये साइकिलिस्ट है, ओके, साइकिल चलाने वाला इंसान है स्टूडेंट्स, ये सीट है या मोटर बाइक है। स्टूडेंट्स उसने यहाँ से शुरू किया, वो पूरा यहाँ तक आया, लेकिन जब भी वो यहाँ पे आता है तो स्टूडेंट्स देखो उसका वो पूरा, ये पूरा हॉरिजॉन्टल है स्टूडेंट्स, ये पूरा ऐसा वर्टिकल होते जा रहा है, लेकिन फिर भी वो नीचे नहीं गिरता है। स्टूडेंट्स वो नीचे क्यों नहीं गिरेगा? व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट टू फॉल डाउन?
So is it clear to all of you? Students? Students, क्या क्लियर हुआ? Clear, sir. ओके, क्या मैं इसको अभी ये देखो, ये वेलोसिटी अभी यहाँ पे ये गिरेगा नहीं स्टूडेंट्स, की किट को होल्ड करके रख रहा है, एंड द मिनिमम वेलोसिटी इज 100 जीआर। तो स्टूडेंट्स ये सारे एमसीक्यूज हैं, डेप्थ ऑफ स्फीयर। अभी ये सिंपल एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये घर पे एक एक्सपेरिमेंट करना स्टूडेंट्स, एक घर पे एक एक्सपेरिमेंट करना। एक क्या करना मालूम है, एक बकेट लेना, पूरा उसको पानी से भर देना और अपने हाथ में पकड़ के रखना स्टूडेंट्स। और ये शायद तुम ऐसा जहाँ पे परफॉर्म करो जहाँ पे ऊपर पंखा वगैरह नहीं हो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा स्पेस खाली हो। और फिर तुम क्या करना, अपना पूरा हाथ को ऐसा रिवॉल्व करना, ऐसा स्विंग करना नीचे से, और बकेट पूरा पानी से भरा हुआ चाहिए स्टूडेंट्स। और तुम बकेट को पूरा ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में करना। जब बकेट टॉप मोस्ट पोजीशन होगा तो उसका माउथ नीचे की तरफ होगा स्टूडेंट्स, द माउथ विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन स्टूडेंट्स। नाउ जब भी तुम इसको रिवॉल्व करोगे ना स्टूडेंट्स, ऐसे स्विंग करोगे ना, तो तुम्हारे हाथों के अंदर तुम्हें ऐसा कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। लेकिन जब भी तुम एक पर्टिकुलर स्पीड से तुम देखोगे कि हाँ तुम्हें ऐसा कॉन्फिडेंस लगेगा, तो तुम क्या करो, पूरा स्विंग कर लोगे। नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इज फॉलिंग ऑन स्टूडेंट्स। तो उस टाइम पे हुआ क्या मालूम है, जैसे तुमने तुमने स्विंग किया, तो तुमने उसको नीचे एक सफिशिएंट हाई वेलोसिटी दी स्टूडेंट्स। बकेट अभी पूरा ऊपर गया है, तो बकेट पूरा ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद बकेट पूरा इन्वर्टेड हो गया है। स्टूडेंट्स ये सोचो कि ये बकेट है, ये बकेट पूरा इन्वर्टेड हो गया है, उल्टा हो गया है, पानी जरा भी नहीं गिर रहा है। उसका मतलब ये सेंट्रिफ्यूगल फोर्स ज्यादा है, पानी चिपक के रह रहा है, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स इज ग्रेटर। देखो यहाँ पे ग्रेटर देन साइन आ रही है। अगर मैं टेंशन को 0 ले लेता हूं तो ये फोर्स बढ़ जाएगा भाई, और वो चाहिए हमें, वो बढ़ा हुआ चाहिए स्टूडेंट्स। अगर ये नहीं बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो भाई वो तो गिर जाएगा। लेकिन लेकिन एग्जैक्टली ऑपोजिट केस यहाँ पे देखो। यहाँ पे जब भी कार स्पीड ब्रेकर के ऊपर जाते हैं तो तुम्हारा mg 10 से ग्रेटर होना चाहिए स्टूडेंट्स। देखो mg शुड बी ग्रेटर देन दैट, उसके लिए n शुड बी 0। कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन सारे केसेस में minimum velocity of a car or minimum velocity of a body in a vertical circular motion will be always under gr, the topmost position. Can I erase this part students? क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ? Yes, sir. Now students, I want you to derive the velocity at the lowest position. So anyone who can derive the answer for this? Question क्या है? I want to find out the velocity at the lowest position for a body performing vertical circular motion fast. Anyone who knows it, please raise your hand. Yes, anybody students who can get it, both these particular students?
Yes, anyone? I want to find out velocity at the lowermost position. Students, anybody? Students, देखो ना क्यों इतना why do you all try to feel so कि you're not able to get these things? Students, ऐसा क्यों feel हो रहा है? Students, मैंने क्या बोला था? Can we obey law of conservation of energy? क्यों नहीं? Students, can we obey Sir, law I'm of trying. conservation? Okay, fine, fine. मिलता होगा तो मुझे please reply करना, please. Yes, anyone? No, sir. Okay, can I solve it for you all? Students? Sir, you said law of conservation of energy you'll use now. So, so we'll take it as a half mvt square. I just tried, but I'm not sure about the answer. Okay. Total mechanical energy. Okay, cross check your answer. Now, total mechanical energy, the topmost position is total mechanical energy at the lowest position. Agreed? Yes, तो sir. यहाँ पे क्या होगा? Kinetic energy plus potential energy at the topmost position is equal to kinetic energy plus potential energy at the lowest position. What is the kinetic energy at the topmost? Body is not at rest. उसको velocity है ना? Topmost position. This is the velocity at the topmost position. Okay. Velocity at the topmost position is this. Agreed? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या होगा? Half m velocity at topmost the whole square plus potential energy will be equal to what? mgh. H. Yes. Kinetic energy at the lowest position will be half m velocity at the mv lowest square. position. मुझे पता what is the potential energy at the lowest position? हाँ, what is the potential energy at the lowest position? Lowest position का मतलब क्या हुआ कहने से? This is actually ground only. Giant wheel में बैठो स्टूडेंट्स, giant wheel में तो lowest position क्या होगा? यानी you are touching the ground, तुम उतर के चलते हो फिर वहां से. अगर giant wheel जब भी नीचे आता है तो तुम उतर के फिर ground पे चलते हो ना, तो वो ground level हो गया ना, हाँ, sir. तो उसका वहां पे potential energy तो zero हो जाएगा. कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. अभी देखो half m, what is the velocity at the topmost position? तो तुम बोलोगे सर under root gr तो whole square and gr आ गया plus mg. What is the height? Height from ground till here कितना होगा सर? This is radius, this is also radius. So total height कितना होगा? Ha Total height
हो जाएगा ट्वाइस रेडियस, आया ना? Yes. यहां से यहाँ पे ले रहा है ना, तो ये हाइट क्या हो जाएगा, ट्वाइस रेडियस हो गया, हाफ एम वेलोसिटी एट लोवेस्ट द होल स्क्वायर। अब मुझे हाँ बताओ सर। स्टूडेंट, बोलो हाफ प्लस वन कितना होगा, हाफ प्लस वन कितना होगा? ये देखो, ये सॉरी ये 2 है, 2 mgr, 2 प्लस हाफ कितना होगा, 5/2 होगा, 5. 4 है ना? तो 5/2 mgr इज इक्वल टू हाफ m velocity at lowest the whole square। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ सर। Can I say mm will get cancelled? Agreed? Yes sir. 2 also will get cancelled. Did you get the velocity at the lowest position under root 5 gr? 5 gr. Hi and our students. Yes sir, got it. Students, what is the velocity at any instantaneous position? Velocity at any instantaneous position का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट, कुछ याद आ रहा है? क्या बोला था मैंने? हाँ स्टूडेंट्स, कुछ याद आ रहा है? स्टूडेंट्स बोला ना मैंने, व्हाट इज द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंटेनियस पोजीशन, यहाँ पे एट पॉइंट पी, क्या फॉर्मूला दिया मैंने? -2 GL constant. -2gl into bracket 1 minus cos theta की बोला ना मैंने? हाँ हाँ स्टूडेंट, हाँ या ना? हाँ सर। अभी सपोज मैंने इसको लोएस्ट पॉइंट लिया स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लोएस्ट पॉइंट? एग्रीड? आया ना? अगर मैं लोएस्ट पॉइंट, सपोज मुझे यहाँ का चाहिए, लोएस्ट पॉइंट पे ये है, तो कहना से इसको मैं 5gr ले सकता हूँ, क्यों नहीं? -2g l को मैं r लूंगा। सो व्हाट इज cos थीटा? जब भी बॉडी लोएस्ट पोजीशन से टॉप पोस्ट में जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 होगा कि नहीं होगा? जब भी लोवेस्ट से हम हाईएस्ट के लिए जाते हैं, स्टूडेंट्स मुझे वेलोसिटी टॉप मोस्ट पोजीशन चाहिए, लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ जा रहा हूं मैं, तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने ये ले लिया, ये 2gr लूंगा। कॉस ऑफ 180 क्या होगा स्टूडेंट्स? व्हाट इज कॉस ऑफ 180? -1। हेलो, -1 माइनस से तो माइनस क्या होगा, माइनस से माइनस क्या होगा, +1। तो 1 into 1, 1 + 1 2, 2 2 जा, 2 2 जा। Did I get velocity at the topmost position? क्या ये आंसर था मेरा? Yes sir. समझ में आ रहा है? हाँ हाँ स्टूडेंट्स, सर। यानी अगर मुझे लोएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी पता है तो मैं कहाँ पे भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। और लोएस्ट, अगर एक ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब भी एमसीक्यू को रीड करना, आर दे स्पीकिंग अबाउट कंप्लीट सर्कल, तो लोएस्ट पोजीशन ही होगा। अभी सपोज मुझे डायमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट चाहिए, यहाँ पे मुझे वेलोसिटी चाहिए, चलो तो यही इक्वेशन यूज करते हैं। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए तो दो तरीके से तुम निकाल सकते हो। अभी कोई एक स्टूडेंट बोलेगा सर कैन आई यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे यहाँ पे किया था? क्यों नहीं, क्यों नहीं? टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ओवर हियर, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ओवर हियर। प्लीज एवरीबॉडी लिसन केयरफुली। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक होगा, यहाँ पे आएगा तो उसको पोटेंशियल भी होगा, काइनेटिक भी होगा। क्या मुझे यहाँ पे वेलोसिटी मिलेगी? मिलेगी। और इसका आंसर क्या होगा? √3gr होगा डायमीटर के यहाँ पे। क्या ये फॉर्मूला यूज करने से क्या मुझे डायरेक्टली आंसर मिल सकता है? क्यों नहीं? देखो अभी करते हैं, वेलोसिटी एट द डायमीटर अंडर रूट, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी एट द लोएस्ट पोजीशन? एट द लोएस्ट पोजीशन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ गॉट इट एज √5gr, स्क्वायर करो तो 5gr आया, है ना? -2g l की जगह पे क्या पुट r, बिकॉज़ योर लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू रेडियस। अब मुझे बताओ, अगर यहां से यहां पे बॉडी आते तो थीटा कितना हो जाएगा? स्टूडेंट्स, हाउ मच इज थीटा बिकमिंग? थीटा बिकमिंग हाउ मच? 90 डिग्री। आया ना? हाँ सर। cos ऑफ 90 क्या बन जाएगा? 0। 1 minus 0, 1, 1 into this is this। आ गया तुम्हारा आंसर √3gr। क्या ये फॉर्मूला में लिख दिया था पहले? देखो
स्टूडेंट्स क्या समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर, समझ रहा है। Yes, sir. स्टूडेंट यानी स्टूडेंट्स अभी प्लीज एवरीबॉडी जो भी ध्यान से सुन रहा है, प्लीज तुम्हें ये सोचना है कि यार सर ने किया क्या है। सर ने आज जब भी डेरिवेशन किया है तो उसने अलग अलग तरीके से, सबसे पहले उसने क्या किया, वेलोसिटी यानी इंस्टेंटेनियस पोजीशन निकाला है पी बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन यहाँ का फॉर्मूला लेने के लिए उनको वेलोसिटी लोएस्ट पोजीशन आना जरूरी है या मालूम होना जरूरी है, तो हम निकाल सकते हैं। और वो हमने यूज किया ना, देखो ना, यूज किया। टॉप मोस्ट पोजीशन के लिए भी और डायमेट्रिक के लिए भी मुझे मिल गया। अगर मुझे यहाँ पे लोएस्ट पता होगी, ये कंसेप्ट मैंने बता दिया। दूसरा फिर मैंने बोला कि अगर मुझे वेलोसिटी द टॉप मोस्ट पोजीशन चाहिए तो उसके लिए मैंने क्या किया, सर उसके लिए आपने अलग अलग एग्जाम्पल लिए, अलग अलग एग्जाम्पल लिए। थ्रेड से ऑब्जेक्ट को बांधते हुए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लिया, उसी थ्रेड को बकेट से बांध के उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लिया, पानी भरा हुआ था और पानी गिर नहीं रहा है। फिर उसी के अंदर आपने एक साइक्लिस्ट को ले लिया जो अंदर की तरफ है, लेकिन साइक्लिस्ट जब ऊपर जाता है तो नीचे भी नहीं गिरता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होना चाहिए तो वो नीचे नहीं गिरेगा, उसकी भी वेलोसिटी अंडर रूट जी आर है। फिर आपने कार का एग्जांपल दिया जो टेंजेंशियली बाहर जाता है, उसकी भी वेलोसिटी अंडर रूट जी आर है। फिर आपने कार को बाहर की तरफ ले लिया था, कॉन्वेक्स ब्रिज बोल दिया था उसको। फिर आपने उसी कार को बाहर लिया और बोला कि कॉन्वेक्स ब्रिज ने अभी स्पीड ब्रेकर से ऊपर जा रही है, वो भी तो कॉन्वेक्स ब्रिज हो गया ना। ये सारे केस में तुम्हारा वेलोसिटी क्या बन गया, अंडर रूट जी आर। हाँ, लेकिन ये ध्यान में रखना, जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और प्रॉब्लम्स अगर थ्रेड है, रोप है, चेन है, तो वहां पे टेंशन बिकम जीरो। और जब भी बॉडी साइकिल के बारे में है, कार के बारे में है, या कार अंदर की तरफ है, कार बाहर की तरफ है, मोटर बाइक अंदर की तरफ है, साइकिलिस्ट अंदर की तरफ है, या कोई बॉडी को मैंने रोल कर दिया है अंदर की तरफ, तो वहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जीरो होगा। और यही चीज रिया बोलने चाह रही थी कि अगर हमने टेंशन को जीरो ले लिया और फिर फोर्स सेंटीमीटर ले लिया तो दोनों केस में मुझे इक्वेट मिल रहा था, मुझे आई गॉट द वेलोसिटी ऑफ द लोएस्ट पॉइंट, आई गॉट 5 जीआर आ गया। जैसे मुझे लोएस्ट पॉइंट मिला तो मुझे यहाँ की वेलोसिटी मिल गई, यहाँ की वेलोसिटी मिल गई। अभी तुम देखो, क्या ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है? हाँ सर है, वर्टिकल प्लेन में। क्या ये यूसीएम है, नॉन यूसीएम है? सर ये नॉन यूसीएम है। कैसे पता चलेगा भाई नॉन यूसीएम है? सर देखो ना सर, वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब भी मैं जायंट व्हील में बैठूंगा तो नीचे आऊंगा तो चिल्लाऊंगा, ऊपर जाऊंगा तो नहीं चिल्लाता हूँ मैं। तो नीचे वेलोसिटी ज्यादा है, अंडर 5 जीआर। जैसे मैं ऊपर जाता हूँ तो मेरी वेलोसिटी कम हो जाती है। यहाँ पे बहुत तो रुकता नहीं है जायंट व्हील अभी भी चल रहा है, अंडर 3 जी, अंडर जीआर। वापस नीचे होगा तो अंडर 3 जीआर, यहाँ पे होगा तो अंडर 5 जीआर। सो अंडर 5 जीआर, अंडर 3 जीआर, अंडर जीआर, वापस अंडर 3 जीआर, अंडर 5 जीआर। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑल द टाइम रिमेन्स कांस्टेंट और इज कंजर्व्ड। हाँ, हे भगवान, हे भगवान, देख तेरे समझा सर। सर पर क्या, हे भगवान सर्कल बोलो। के हर एक पॉइंट पे स्पीड तो सेम ही रहता है ना। नहीं कि अगर स्पीड होगा तो यूसीएम हो गया मेरे भाई, यूसीएम कहाँ मैंने बोला है यार। हाँ यूसीएम तो रजनीकांत, तो अगर तू अगर यूसीएम चाहिए तो वो मोटर से घुमाना फिर। अभी फॉर एग्जांपल तूने लंदन से देखा, शायद अगर यूट्यूब पे जाओगे तो टाइप करना लंदन आए, या लंदन व्हील, या सिंगापुर फ्लाई व्हील, टाइप करना क्या, सिंगापुर फ्लाई व्हील। सिंगापुर फ्लाई व्हील का अगर वीडियो अगर रहेगा ना स्टूडेंट्स, तो देखना उसके आजू बाजू में रेसिंग ट्रैक भी है, Formula 1 रेसिंग कार का। तो वो वैसे वाले तुम व्हील देखो ना स्टूडेंट्स, वो एकदम कांस्टेंट स्पीड से जाता है, ना ही स्पीड बढ़ती है ना ही, वो पूरा एक रेवोल्यूशन वहां पे पूरा सिंगापुर दिखता है। मैंने बताया स्टूडेंट्स सिंगापुर कितना बड़ा है। हाँ स्टूडेंट्स, हाँ हाँ, हाँ sir. स्टूडेंट्स, सर। बैंड्रा से अंधेरी तक बस उतना बड़ा है। 2.5 घंटे में तो पूरा सिंगापुर घूम सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये फ्लाई व्हील है वो, लेकिन वहां पे स्पीड कांस्टेंट है स्टूडेंट, स्पीड कांस्टेंट। हम कांस्टेंट स्पीड के बारे में बात नहीं कर रहे, हम वेरिएबल स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ये नॉन यूजिंग। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस सर। क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ? सर 1 मिनट। Okay. डन सर। Okay. Now, students, I wanted to prove. Oh, Ravikant, right?
मेरा नाम अरे वो दिखता नहीं है यार, वो रविकांत, मैं रजनीकांत बोल दिया तेरे को। अरे तेरे को रजनीकांत का पद ही दे दिया, रविकांत, रजनीकांता, रजनीकांता, यू आर रजनीकांता ऑफ फाउंडेशन बिल्डर 2GT। डोंट वरी रजनीकांता, पता है रजनीकांता अगर अपने घर में, अभी ये यहाँ पे हमें अपने इतनी ठंडी क्यों गिर रही है, रजनीकांता ने अपने घर में फ्रिज खोल दिया है, इसलिए यहाँ पे बॉम्बे में इतनी ठंडी गिर रही है सुबह सुबह। समझ में आ रहा है? अरे हंसो ना यार, हंसने की भी तुम लोग पैसे लेते हो कि क्या है। ओके फाइन, फाइन। कैन आई इरेज कर दूं? Yes, sir. Okay. अभी स्टूडेंट्स कोई बता सकता है हाउ टू गेट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी? मुझे ये प्रूव करना है टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। चलो कोई बता सकता है हाउ टू गो अबाउट दैट? जस्ट होल्ड स्टूडेंट्स। Yes, students, anyone? Yes, Ravikant. Can you answer, Ravikant? Yash, Shyam, Sanya, Sakshi, Riya. Labdhi to doesn't want to answer. At least she can say कि what is the reason behind it. Mayank, कशिश तो चली गई, भाग गई। हाँ students, can you prove total mechanical energy is conserved or remains constant? Remains constant. हाँ लेकिन कैसे प्रूव करोगे रविकांत, कैसे प्रूव करोगे? तो तू क्या करना रविकांत, हेलो ध्यान से सुन स्टूडेंट्स, तुम क्या करो, अगर तुम्हें पूछा कि प्रूव टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट और इज कंजर्व्ड, तुम निकालो ना टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजीशन, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट टॉप मोस्ट पोजीशन। सबका आंसर तुम्हें अगर सेम मिलेगा तो यस, कांस्टेंट। और स्टूडेंट्स में सबका आंसर मिलेगा कांस्टेंट 5/2 mgr, ये तुम्हारा आंसर है। दिस आंसर इज इन जूल, क्योंकि एनर्जी के बारे में है। यानी तुम यहाँ पे तीनों केस में यही आंसर आएगा स्टूडेंट्स। चलो कौन सा प्रूव करो स्टूडेंट्स, विच वन यू वांट मी टू प्रूव, लोवेस्ट डायमीटर या टॉप मोस्ट, कौन सा वाला लो? एक मैं प्रूव करता हूँ, दो तुम प्रूव करना। अच्छा चलो टॉप मोस्ट लेता हूँ मैं। फ्रेंड्स टॉप मोस्ट पोजीशन में व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, बोले सर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टॉप मोस्ट पोजीशन पे स्टूडेंट्स बॉडी रेस्ट पे नहीं आती है, यानी उसको काइनेटिक एनर्जी है, तो हाफ m वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट द होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mg टोटल हाइट, हाफ m व्हाट इज द वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पोजीशन, सर √gr, तो स्क्वायर है तो ये gr आ गया, प्लस mg व्हाट इज द हाइट, व्हाट इज द टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ट्वाइस रेडियस। स्टूडेंट्स अभी इसको ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो स्टूडेंट्स, हाफ प्लस 2, स्टूडेंट्स हाफ प्लस 2, इसका आंसर क्या होगा, आ गया 5/2 mgr। हाँ स्टूडेंट्स, हाँ सर। अभी इसका तुम लोग निकालो आंसर, चलो फास्ट अपने आप निकालो।
जल्दी से। Yes, can you get an answer for this? मिल रहा है स्टूडेंट्स आंसर? आया ना? अच्छा, which one you want? Lowest diameter? स्टूडेंट्स कौन सा चाहिए? स्टूडेंट्स which one you want me to do? तुम्हें दोनों केस में यही आंसर आना चाहिए, 5/2 mgr। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। लोएस्ट पॉइंट पे भी काइनेटिक होगा, पोटेंशियल जीरो होगा क्योंकि लोएस्ट पोजीशन पे ग्राउंड पे u इज जीरो और v इज इक्वल टू √5 gr आ गया तुम्हारा। यहाँ पे व्हाट इज द वेलोसिटी? √3 gr। हाइट कितना होगा स्टूडेंट्स? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाइट विल बी इक्वल टू रेडियस, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों होगा स्टूडेंट्स। एग्रीड? Yes, sir. कैन आई इरेज नाउ स्टूडेंट्स? क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ? यानी स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी फॉर अ बॉडी परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन remains constant or is conserved। ये ध्यान में रखना, at each point remains constant or is conserved। क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ स्टूडेंट्स अभी? फिर इरेज कर दो, हाँ या ना? अरे क्या हो गया? हाँ Yes, sir. सर। Okay students, so I've told you about velocity, I've told you about energy। Okay students, I told you about velocity at any instantaneous position also। Now students, this is the last part I'll be doing it students। Today we'll be doing vertical circular motion itself only। Okay students, and then we'll wind up the sessions today। Okay, abhi ek last part students, I want to go for it, tension students। We'll be going for tension। Okay, listen carefully। है तुम्हारा vertical circular motion only, which is non-UCM students। We are trying to find out students tension at any instantaneous position for a particle performing vertical circular motion। ये center है, horizontal x-axis, vertical y-axis, particle is performing vertical circular motion। Let us say the particle is at an instantaneous position t, okay, and this particle is at an angle theta with the vertical। Since मुझे चाहिए tension
स्टूडेंट्स ये सोचो कि ये स्टोन है, अगर सपोज इनिशियली तुम्हारा स्टोन यहाँ पे, स्टूडेंट्स इनिशियल पोजीशन ये है, ये है ओके, और ये स्टोन इनिशियली रेस्ट पे है, तो स्टूडेंट्स हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ओवर हियर, मुझे बताओ। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और ये तुम्हारा स्ट्रिंग है, मुझे बताओ हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग। अभी तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है, एग्रीड, और ये तुम्हारी स्ट्रिंग है and it is deviated at an angle theta. हाँ स्टूडेंट्स मुझे बता सकते हैं हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ओवर हियर। पाथ इज सर्कुलर बट वर्टिकल प्लेन, यही हेडिंग है। हाँ स्टूडेंट्स, इनिशियल पोजीशन द बॉब इज एट रेस्ट, थीटा 0 डिग्री, जल्दी हाँ स्टूडेंट्स बता सकते कोई। स्टूडेंट्स लोवेस्ट पोजीशन होगा, वर्टिकल है, थीटा 0 है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा। तो तुम बोलेगा सर बॉब का खुद का वेट नीचे की तरफ होगा एंड द टेंशन इज एक्टिंग अपवर्ड्स, तो वर्टिकल पोजीशन के अंदर T is balancing, T balances mg when the bob is initially at rest, theta is 0, हाँ या ना। हाँ स्टूडेंट्स, Yes, sir. टेंशन mg को बैलेंस कर रहा है, तो क्यों इतना तुम टाइम लगा रहे हो बोलने में, मुझे ये पता नहीं चल रहा है। जब भी बॉब यहाँ पे होगा तो टेंशन इस तरफ जा रहा है स्टूडेंट्स, मैंने T को क्या ले लिया, T is टेंशन स्टूडेंट्स, and mg is weight of object, it can be a bob or it can be a stone, initial position, this is a position after time t, okay, this is a position p of the body after time t। जब भी यहाँ पे आता है स्टूडेंट्स मुझे बताओ, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले स्टूडेंट्स, व्हाट इज एग्जैक्टली द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर सच एन ऑब्जेक्ट विल बी। if I take the object and if I happen to tilt that object or move that object at an angle theta with the vertical, तो मुझे बता सकते हो स्टूडेंट्स what are the forces acting, students what are the forces acting। students what are the forces acting। बोल सकते हो। Why not? स्टूडेंट देखो ना, जब भी बॉब यहाँ पे आता है तो mg तो नीचे की तरफ ही जाएगा, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, ये टेंशन है। अभी मुझे बताओ क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। हाँ सर वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। स्टूडेंट्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ध्यान से सुनना, अगर तुमने बॉडी को यहाँ पे सफिशिएंट वेलोसिटी नहीं दी तो क्या ये ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, नहीं जाएगा, वो नीचे आएगा। ये ऑब्जेक्ट को अगर तुमने यहाँ पे सही तरीके से स्पीड नहीं दी तो वो ऊपर जाने के बाद में वापस वो नीचे आएगा, यानी कोई फोर्स होगा जो उसको नीचे लेके आ रहा है ना। ये कौन सा फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। और ये कैसे मिलता है, ये कैसे मिलेगा रिस्टोरिंग फोर्स, बाय रिजॉल्विंग टेंशन और बाय रिजॉल्विंग एमजी। को बता सकता है स्टूडेंट्स, मुझे बताओ हाउ डू आई गेट द रिस्टोरिंग फोर्स। if the bob or the object or the stone does not get a sufficient speed at the lowest position, it will not rise up to a greater height, it will again come down। तो मैंने किसको रिजॉल्व करना है स्टूडेंट्स, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए मैं किसको रिजॉल्व करूं, मैं टेंशन को रिजॉल्व करूं या मैं वेट को रिजॉल्व करूं, और क्यों। स्टूडेंट्स एनीवन। हाँ स्टूडेंट्स किसको रिजॉल्व करूं मैं।
स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट द वे टू डू स्टडी यार। तुमने कैसे आंसर नहीं दोगे तो उसका मतलब नहीं है सारे सब मैं ही क्वेश्चन रेज करूँ, मैं ही आंसर दूं। स्टूडेंट्स, हम लोग ने ये नहीं पढ़ा था जब भी हम कोनिकल पेंडुलम पे थे स्टूडेंट्स, तो तभी बॉब सस्पेंडेड था, तभी भी ये फोर्सेस थे। फिर मैंने बॉब को डिस्प्लेस किया और फिर मैंने हॉरिजॉन्टल में मूव किया। T is equal to 2 pi under root L cos theta by G हमें फॉर्मूला मिला। ये किया है कि नहीं किया स्टूडेंट्स, कोनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला? हाँ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ये किया है कि नहीं किया है? A pendulum moving in a horizontal plane, conical pendulum, T is equal to 2 pi under root L cos theta by G। स्टूडेंट्स मुझे हाँ या ना तो बोलो, किया है कि नहीं किया? Yes, sir. तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में था तो उस टाइम पे हमने टेंशन को रिजॉल्व किया था। अभी ये वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है स्टूडेंट्स, वर्टिकल, लुक एट माय हैंड, इट्स गोइंग वर्टिकली। तो यहाँ पे किसको रिजॉल्व करोगे? mg को रिजॉल्व करोगे। सो आई एम रिजॉल्विंग mg इनटू टू कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स, वन इज हॉरिजॉन्टल, वन इज वर्टिकल। ये थीटा तो ये थीटा स्टूडेंट्स, ये गार्ड बांध लो, नॉट बांध लो तुम्हारे दिमाग के अंदर कि जब भी कभी भी कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करेगा, बॉडी जब भी हॉरिजॉन्टल मूव करेगा तो उस टाइम पे टेंशन को रिजॉल्व करते हैं। अगर तुमने वेलोसिटी ऑफ अ कार और सर्कुलर बैंक रोड या फ्रिक्शन के हिसाब से लिया था स्टूडेंट्स, तो हमने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को जो सेंट्रीपिटल की तरफ जा रहा था उसको हम लोग ने ले लिया था, यानी नॉर्मल को रिजॉल्व किया था स्टूडेंट्स। हमने mg को रिजॉल्व नहीं किया था। इंक्लाइन प्लेन में जो mg नीचे की तरफ आता है उसको नहीं, वर्टिकल Sir, सर्कुलर मोशन में होगा तो mg को रिजॉल्व करोगे। हाँ रिया बोलो। sir, can you repeat? I was disconnected due to network issue. Your मैं voice तो was not clear. oh my god, my dear, I was consistently asking but nobody was replying that what to resolve। तो मैंने बोला जब भी पार्टिकल यहाँ पे है तो हम mg को रिजॉल्व करेंगे, हम टेंशन को रिजॉल्व नहीं करेंगे। कोनिकल पेंडुलम में मैंने बोला था कि जब भी बॉब हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करेगा तो टेंशन को रिजॉल्व कर, ये मैंने बोल रहा था। तो यहाँ पे हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे किसको रिजॉल्व करेंगे? mg को। तो ये दो मेरे वेक्टर्स हो गए, ये थीटा तो ये थीटा, तभी इसको रिजॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। फ्रेंड्स यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा होगा? यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? mg sin Just थीटा। जो बॉडी इज ब्रॉट बैक टू मीन पोजीशन, समझ में आ रहा है? तो बॉडी इज ब्रॉट बैक टू मीन पोजीशन। अभी मुझे चाहिए फॉर्मूला टेंशन एट एनी इंस्टेंटेनियस पोजीशन, यानी मुझे टी चाहिए एट पॉइंट पी। तो देखो ये बॉब है, सोलर स्टूडेंट्स, ज्ञानेश्वर सर का ही फोन था। Okay, friends. Friends, what is the restoring force? Restoring force is mg sin theta, mg sin theta. and that force is causing the body to come back to its mean position. क्या ये clear हुआ students? हाँ sir. अब मुझे टेंशन चाहिए for a body at point P। मुझे बताओ students, P के ऊपर कितने फोर्स हो रहे हैं? एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ जा रहा है। क्या ये बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है स्टूडेंट्स? क्या ये बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है? हाँ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ या ना? हाँ sir. तो कौन सा फोर्स इफेक्टिव होना चाहिए? टेंशन इफेक्टिव होना चाहिए, mg cos थीटा होना चाहिए, क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। एग्रीड? हाँ sir. और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा? अंदर की तरफ होगा। हाँ स्टूडेंट्स? हाँ. Yes, sir. तो कैन आई से tension at any instantaneous position is greater than mg cos theta, tension minus mg cos theta is the net centripetal force।
which is required for force required for body to perform vertical circular motion. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. Everyone, ये clear हुआ? Students देखो अंदर का force इससे ज्यादा होगा. The difference is actually the centripetal force. Students ये क्या concept है मालूम है? अभी मैंने बताया था. जब भी स्टोन वर्टिकल ऊपर की तरफ होगा तो कौन सा फोर्स ग्रेटर होना चाहिए बॉडी को होल्ड करने के लिए? मोटरसाइकिलिस्ट वाला ऊपर होगा तो बाहर का फोर्स ज्यादा होना चाहिए, तो हमें ग्रेटर चाहिए, तो किसको मैं जीरो ले लूं? वैसा वाला कंसेप्ट है ये स्टूडेंट्स. Yes. आइडेंटिकली शायद तुमने लिफ्ट के मोशन के लॉस ऑफ मोशन में किया होगा. जब भी लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो टेंशन इज ग्रेटर देन mg, t माइनस mg इज इक्वल टू ma. वैसे ही वाला ये है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स टेंशन माइनस mg cos थीटा. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं स्टूडेंट्स, टेंशन is equal to tension minus mg cos theta. Okay, so tension at any instantaneous position, इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ students. what's my formula? mg cos theta plus mv square upon r. ये हुआ तुम्हारा formula for tension at any instantaneous position. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. Now formula, students, taking this formula, कोई बता सकता है what is the tension will be at the lowest point, tension at the diameter of the points, and tension at the topmost position? चलो ढूंढो answers. All of you will start finding out the answers. Yes, anyone tell me? Riya? Sir, on lowest it would be under root 5 gr, no? हाँ टेंशन चाहिए मुझे अच्छा। वेलोसिटी थोड़ी चाहिए, टेंशन चाहिए टेंशन सॉरी सर. जो तुम लोग मुझे देते हो हमेशा लेक्चर्स के टाइम पे, और ज्यादा करके लब्धी देती है और कशिश, दोनों नहीं है, दोनों चुप है. देखा लब्धी चली गई. ओ माय गॉड, शी वेंट. Yes, anyone? I want to find out tension at different positions, students. Can I give an answer, students? Answer दे दूं मैं? मुझे पता स्टूडेंट्स, मुझे टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन चाहिए. चलो, अगर मुझे टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन चाहिए स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैं. Sir, I got that tension on lowest position. What is that?
while taking like 5 GR route, it will be like tension 6 mg. Very good, absolutely correct. Students, tension at lowest point अगर मुझे चाहिए तो थीटा क्या बन जाएगा? Theta will be tending to 0 and cos of 0 will be 1. What is the velocity at the lowest position, students? What is the velocity at the lowest position? Under root 5 g. तो ये सारे पॉइंट्स डाल दो, cos of 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे mg आएगा. v के जगह पे under root 5 gr डाल दो, स्क्वायर कर दो, तो 5 gr upon r आ जाएगा, और m तो है ही. तो what is the answer? 6 mg. So students, tension at the lowest point is maximum. ये ध्यान में रखना students. Tension at the lowest point is always Maximum. Now, can you tell me what is the tension at the diametrically opposite points? Students, can you tell me what is the tension at the diametrically opposite points? Sir, I tried, but I didn't got the right answer. Okay, get me the answer for diametrically opposite points and topmost position also, students. मुझे tension यहाँ पे भी चाहिए, tension topmost position पे भी चाहिए. Anyone? Sir, Yes, bolo. sir, would it be 0 on the topmost? Absolutely correct. And what exactly at the lowest point? Yes, sir. Sorry, diametrically opposite points, what will be? Sir, it would be What is the answer you're saying it? sir, like topmost would be 0, but I'm not getting the diameter one. Why? Students, topmost के लिए 0 कैसे होगा students? ध्यान से सुनना. Topmost के लिए what she's saying 0 यानी अगर ये body यहाँ पे आता है students, अगर ये body को मैं vertically upward ले लूँ तो थीटा क्या बन जाएगा? ये body अगर मैं यहाँ पे ले लूँ students तो थीटा कितना बन जाएगा? 180. What is cos of 180? -1. तो ये क्या हो जाएगा? Topmost minus mg. Cos of theta is -1 plus. What is the velocity at the topmost position? Under gr. तो gr और r कैंसिल हो जाएगा तो mg हो जाएगा, तो माइनस mg प्लस mg 0 हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स, टेंशन एट द टॉपमोस्ट पोजीशन इज 0. टेंशन एट डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? व्हाट इज cos of 90? देखो ना, जब भी बॉडी यहाँ पे आएगा तो व्हाट इज cos of 90? Cos of 90 विल बी 0. तो 0 into mg यानी 0 आ गया, प्लस m.
What is the velocity at the diametrically opposite points? Under root 3gr. What is the answer? 3 mg. क्या ये clear हुआ students? हाँ sir. Yes, sir. Please students, so do keep in mind that जब भी तुम अगर किसी ने पूछा there is a tension maximum for a body in vertical circular motion, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए tension is maximum at the lowest point. कितना होगा हमेशा 6 mg. At the lowest point is always 6 mg students. Okay. Tension at the topmost position is always 0. 0. And tension at the diametrically opposite points will be always 3. टेंशन एट एनी इंस्टेंटेनियस पोजीशन अगर दे दिया तो फॉर्मूला क्या होगा? टेंशन एट एनी इंस्टेंटेनियस पोजीशन ये होगा mg cos theta plus mv square by r. क्या ये क्लियर हुआ? हाँ स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके. क्या मैं इसको अभी इरेज कर सकता हूँ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट हम वर्टिकल Yes, सर्कुलर sir. मोशन जो कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स? वी लर्नड अबाउट for vertical circular motion students. I told you about velocity at every position students. I told you velocity at any instantaneous position. I told you velocity at the lowest position, diametric velocity and topmost also. Then I told you about total mechanical energy, finding out kinetic and potential at the lowest point, diametrically opposite points, topmost position. Total mechanical energy हमेशा constant रहता है, वो भी मैंने बता दिया है. फिर मैंने find out क्या tension at any instantaneous position, जिसका formula ये है. फिर हम लोग ने find out क्या tension at lowest position, diametrically opposite position and topmost position. फिर ये भी बताया था टेंशन को कभी रिजॉल्व करोगे और mg को कभी रिजॉल्व करोगे. जब भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा तो mg को रिजॉल्व करना है, और जब भी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होगा तो टेंशन को रिजॉल्व करना है. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट सबको? Yes, sir. Fine. Students, this is the part which I've done it, students. Now it's hardly another half an hour is left, students, that I'll pick it up in the next lecture, students. Okay, half an hour, 40 minutes, few questions, then we'll go for problems. So next lecture, I'll pick it up and I'll finish with the chapter also, students. Okay, we'll be solving problems in the next lecture. Okay, students, but ye revise karna, students, and learn all the formulas. Agree, students? All the students, is it clear to Okay, all of sir. you? Okay, Yes, sir. so bye, take care. Okay, Thank you, sir. bye-bye.